اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھی، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھی، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا، ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کی عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ عمارتیں بن گئی، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی کم گو لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے
किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मजहब के मुतालिक ना पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से उनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। उसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा वो माला से उसकी जाती जिंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से उनकी मुलाकात तकरीबन रोज ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? I mean, तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उससे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा, खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है बारिश में भीगने से। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है? उसका तस्वुर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारीख कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने उसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ ना पाई। उसकी जुबान से निकलने वाले बेरब्त जुमले, कभी कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नजर हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला उसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था माला छत पर न आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी। चूंकि वो और बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर न आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर न आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए उसने बेइख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नजर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए उसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है।
और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने के लिए बाहर जाती हूँ और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूँ। उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में न आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब में ही लोग आबाद थे। उसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाजा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा उसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से उसे पहले देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती हैं? उसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन बाल काफी लंबे हैं। एक दफा ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई थी। आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज तेज चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाजा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसिस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज तेज बोलते हुए उसने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल उसकी ख्वाहिश की ऐन मुताबिक माला उसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब उसकी तवक्का के खिलाफ था। अब रुमैसा की समझ में न आया कि वो क्या करे। एक 16-17 साल लड़की उस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहते हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे उसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, फिर इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े उस खातून ने रुमैसा को तफसील बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है उनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफुनशुदा लाश पड़ी थी। उसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजा पर नजर डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वाकई वो उस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापिस आ गई थी, जिसे उसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफाकी।
रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद ना कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ घर आने का वक्त हो गया है। माजरत करती रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी भुलाने में, जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद उसके इस तरह मारने में सगे बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात उसे चंद घंटे पहले ही पता चली, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश उसके वजूद के अंदर कहीं इंतजार कर रही थी कि शायद कभी जिंदगी में उसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता तो उसकी मतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। उसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का ये दिल सोच कर कांपता रहा कि उसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर की क्यों। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बाइस वो अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे उसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद किया उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। उसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाजा खुला था, जबकि उसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े उस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, उसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला, माला। ऊपर चढ़ते उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा, चारों तरफ एक खू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबराकर वापस पलटी तो उसका पाँव उस काले बिल्ले से टकरा गया जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिलाकर रुमैसा की जानिब देखा। उसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा एक खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे, उन्हें फोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर पहले वाला सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने उसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं, रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी। शायद दिमाग खराब हो गया है और रात के खाने तक वो शाम का वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर उसने नवीद से फोन पर बात की, फिर कॉफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई।
रुमैसा कॉफी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था, उसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा उसे देख रही थी जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल उसकी पुष्ट पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज नहीं था। उसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज देकर अपनी तरफ मतवज्जा कर सके, लेकिन उसके आवाज देने से पहले ही माला ने बिजली के खंबे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में ना जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। उसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंख फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा! खौफ की एक झुरझुरी ने उसे इस तरह अपनी लपेट में लिया कि वो खड़े खड़े जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ और उसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में उसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाहकर भी किसी को ना बता सकी, मगर उसकी हालत के पेश नजर बगैर उसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और जिंदगी में दोबारा वो कभी उस तरफ ना गई जहां आखिरी बार उसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान गई थी कि माला की असल हकीकत क्या है।